students. In the previous lecture we studied about auxins. So in this one we are going to start with gibberellins. So gibberellins are also a kind of plant growth regulator. So firstly we will discuss about the discovery, how the gibberellins were discovered. So there was a scientist named E. Kurosawa. He was a Japanese scientist and he was studying the Bakane disease of rice plant, and while studying this disease, he came across the plant growth regulator named as a gibberellins or the gibberellic acid. So what happened is, in this disease, the rice plants that are suffering, they had pale yellow leaves, they were very tall, and they were sterile. Sterile means they were not able to produce any of the reproductive structures, that is the flowering was not happening there. So what he observed is that these seedlings were very tall. That is why this disease is also known as the foolish seedling disease. Okay, so the seedling, that is the plant, it was growing foolishly. That is why the foolish seedling name. So what he tried to understand was what is the causal organism for this disease. So when he tried to find out, he found that there was a fungus by the name Gibberella fujikuri that was responsible for causing this disease. So he did another thing, he isolated the sterile Gibberella fungus. So he took a filtrate, a sterile filtrate of the fungus, and applied it on a healthy plant. So when he applied it on a healthy plant, he observed that the plant started showing uncontrolled increase in height. That is exactly like this plant that was suffering from the disease. So he thought that this can be used commercially also. When we want to increase the height of the plant, we can simply use this and we can get the result. Okay, so later on, so many other scientists, they obtained the chemicals which had the same features like this, and they named it as GA1, GA2, GA3, that is gibberellic acid 1, gibberellic acid 2, gibberellic acid 3, and so on. So what we have learned till now is that there was a scientist named as E. Kurosawa who was working on the rice plants that were suffering from a disease known as the Bakane disease, and when he found out what is the cause for this disease, he found that there was a fungus named Gibberella fujikuri, and on the basis of this fungus's name, they called this growth regulator or this chemical as gibberellic acid. So now let us study, like in auxins we know that indole ring derivatives. Okay, we know that auxins are indole ring derivatives. So an indole ring is present there. So what is the precursor in case of gibberellic acid? So gibberellic acid, they are diterpenoids. So terpene is the precursor from which the gibberellins or the gibberellic acids are synthesized. Now at what site they are synthesized? So these are synthesized at the internode and in the germinating seeds. So internode is, like if you consider a plant like this, these are the parts where you can see a little bit of a thickening. These are called as nodes. So between any two nodes, this space is called as internode. So here the gibberellins are produced and they promote the elongation of the internodes. Like the auxin was acting only at the tip and it was causing the elongation from the point of tip. This is causing elongation from the point of internode. So here it is causing elongation in this region. Now in germinating seeds. So in germinating seeds, particularly if we want to discuss, we will come across an application, malting of barley. So barley seeds. Okay, how this help in germination of seed, how it is present in the germinating seeds, what it does there. Mainly what happens is that this particular, this will study in terms of barley when we will study the process of malting. So right now what we need to know is that it is produced in germinating seeds. Germinating seeds, what it does is, it simply converts the starch into glucose. Okay, so it helps in, basically it converts the starch into maltose, which is then converted into glucose. So like that way it is going to reduce the time that is taken for the process of germination. So this glucose can then be worked upon and to respire and produce energy that is necessary for the germination. So this is how it is done.
Now what is the chemical nature of gibberellins? So chemical nature of gibberellins, chemically as you already know, the name is gibberellic acid. So they are acidic in nature. Now what are the various roles that the gibberellins perform? So gibberellins, the important role is it increases the length of the axis in grapes. So in grapes plant, what it has been observed that if suppose this is the earlier plant, okay, so grapes are being produced here like this. Now what you do, suppose you apply the gibberellins. You apply the gibberellins and what will happen? The length of this axis will increase. Why? Because it is causing the elongation of the internodes. So now between two nodes there will be more space. So now your fruit can have a larger size as compared to the previous one. So this is how it is happening in case of grapes. So gibberellic acids, they are applied on the grapes stalks so as to increase the length of the axis where the grapes are to be attached. Next important application is it improves the size and shape of apples and pears by elongating, it helps in providing them proper shape. Okay, so it also is used for improving the size and shape of apples and pears. In some of the fruits it is applied and this will result in elongation. So if earlier was the apple was something like this, now it will become elongated and a little bit like this. So the shape will be improved. Okay, because of elongation that is occurring. So likewise it is happening in the pears also. Now the next is it promotes malting in barley and therefore useful in brewing industry. So this is a very important application. How it is carrying out the malting of barley. Basically what it does is, if you consider a barley seed, inside the barley seed you can find an endosperm. Okay, and outside the endosperm you can find a protein layer. So endosperm is made up of starch. Okay, it has starch in it. And this layer which is outside, which is called as the aleuron layer. Aleuron layer, as you all know, it is made up of proteins. And these proteins are basically actually the enzymes. So there is this enzyme amylase, you can say, which is responsible, okay, which is responsible for breaking down this starch and converting it into the maltose. That maltose will then be further converted into glucose. Okay, so what it does is that if you apply gibberellic acid, okay, if you apply gibberellic acid on this seed, what you will observe is that by application of gibberellic acid, this process of conversion of starch to maltose, okay, जो प्रोसेस होता है स्टार्च से माल्टोज में चेंज करने का, अगर आप उसके लिए नॉर्मली जिबरलिक एसिड चाहिए होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा जिबरलिक एसिड प्रोवाइड कर देते हैं बाहर से, तो क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है फास्ट हो जाता है, ठीक है, इसका स्पीड बढ़ जाता है. सो जब ये क्विकली हो जाएगा तो क्विकली नाउ दिस माल्टोज विल कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, एंड जैसे ही ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा इट कैन एंटर द प्रोसेस ऑफ इथेनॉल फर्मेंटेशन, और आराम से इसमें से इथेनॉल बनाया जा सकता है. ओके, बिकॉज इट इज़ द ग्लूकोज दैट विल एंटर इनटू द ग्लाइकोलाइटिक पाथवे, फिर ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से फाइनली इट विल एंटर इनटू द प्रोसेस ऑफ इथेनॉल फर्मेंटेशन. ओके, जब पायरुवेट बन जाएगा. सो ये सारी चीज़ें होती हैं. दिस इज़ हाउ इट इज़ प्रमोटिंग द माल्टिंग इन बार्ली. माल्टिंग मतलब कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज. तो इस प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देता है. तो जब एक बार माल्टोज बन जाएगा तो नेक्स्ट इज ग्लूकोज, वेरी इजीली इट विल बी मेड एंड द इंडस्ट्री विल बी बेनिफिटेड. नाउ नेक्स्ट रोल ऑफ दिस gibberellins इज इट इंक्रीजेज द राइपनिंग पीरियड ऑफ द फ्रूट ऑन ट्री. ठीक है, यानी कि जो फल का पकने का टाइम है, जैसे कि ये पेड़ है, इसके ऊपर कोई फ्रूट लगा हुआ है, से इट इज़ अ मैंगो और वॉट एवर फ्रूट इट इज. नाउ आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट हैज़ राइपन्ड इट विल फॉल. Now what happens with the gibberellins? If you apply the gibberellins on it, what will happen is that जिस टाइम में इसको गिरना था, मान लीजिए इसको 2 दिन में गिरना था, तो now it will fall in 3 days और 4 days और 5 days like that. So क्या करता है, ये पकने का जो टाइम है, क्योंकि ये ग्रोथ करवाना शुरू कर देता है, तो जब ग्रोथ हुआ तो मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोसेस ग्रोथ का ही, तो राइपनिंग कैसे होकर कैसे गिरेगा. सो ये प्रमोट करता है ग्रोथ, जा कर के इलोंगेशन प्रमोट करेगा, जिसकी वजह से जो पीरियड है राइपनिंग का वो जो है वो बढ़ जाता है. मतलब कि ऑन द ट्री इटसेल्फ, मतलब फ्रूट देर में पकेगा एज कम्पेयर टू इट वॉज व्हेन इट वॉज अर्लियर और प्रायर टू द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिक एसिड.
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द फार्मर वांट्स टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। मतलब अगर किसी फार्मर ने अभी जाके मार्केट के अंदर जब बहुत सारे मैंगोज हैं सपोज करिए, सो इफ देर आर ऑलरेडी सो मेनी मैंगोज एंड इफ द फार्मर गोज एंड सेल्स, तो डिमांड इज द सेम, ओके, डिमांड वही की वही है, लेकिन सप्लाई क्या है अब इंक्रीज हो गई, क्योंकि सारे के सारे फार्मर्स एक ही टाइम पे लेके आ गए, तो सप्लाई हो गई इंक्रीज, डिमांड रही कांस्टेंट, ओके, नो चेंज। सो व्हाट विल हैपन, द रेट्स विल बी लो, ओके, यू विल गेट लेस प्राइस। लेकिन अगर आप ज़्यादा दिनों तक उसको पेड़ पर ही सेफ रख सकते हो, स्टोरेज का भी खर्चा करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको ले जाके फ्रीज़र में या कहीं डालें, यू जस्ट लेट देम बी ऑन द ट्री। तो नाउ व्हाट यू कैन डू इज़, आप जब सप्लाई कम होती है उस टाइम पे ले जाके अपने एप्पल्स को, अपना जो भी आपका फ्रूट है उसको वहाँ मार्केट में सेल कर सकते हैं और आपको ज़्यादा कॉस्ट मिलेगी एज़ कम्पेयर टू व्हेन देयर वाज टू मच सप्लाई। नेक्स्ट इज इट हेस्टन्स द जुवेनाइल फेज इन कॉनिफर्स। कॉनिफर्स क्या होते हैं बेटा, कुछ एंजियोस्पर्म्स होते हैं, सॉरी एंजियोस्पर्म्स नहीं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। कॉनिफर्स आर द जिम्नोस्पर्म्स, ओके, जैसे कि साइकस होता है या फिर पाइनस होता है। So there are various kinds of gymnosperms. So the common most is the gymnosperm that is you can observe is the cycas. Cycas में क्या होगा, ऐसे यहाँ पर कुछ ऑर्नामेंटेशन होगी उसके बार्क के ऊपर, और ऊपर आपको कैसे पत्ते मिलेंगे, जैसे पाम के पेड़ होते हैं ना, लाइक पाम लीव्स, तो सेम दैट काइंड ऑफ लीव्स यू विल ऑब्जर्व हियर। सो व्हाट हैपन्स इज कि कॉनिफर्स जो होते हैं उनको टाइम लगता है, ठीक है। कॉनिफर्स अगर ग्रो करेंगे, चाहे आप सेड्रस ले लो और चाहे आप कोई और पाइनस ले लो, सो कॉनिफर्स क्या होते हैं, दे टेक सम टाइम, ठीक है। कॉनिफर से सीड बनता है और सीड से आगे चल के फिर से क्या बनेगा, नया कॉनिफर बनेगा, ओके, न्यू प्लांट अगेन। सो ये जो प्रोसेस है, एक जो कॉनिफर है सीड प्रोड्यूस करेगा, तो ये जो फेज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मैच्योरेशन हुई, लास्ट में जाके सीड प्रोड्यूस हुआ। तो इन बिटवीन देयर इज़ द जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज मतलब कि अभी उसका सेक्सुअल मैच्योरेशन प्लांट का नहीं हुआ है, मतलब अभी वो सीड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी अटेन नहीं कर पाया है। तो अगर आपके पास कॉनिफर्स हैं और कॉनिफर्स के अंदर जुवेनाइल पीरियड जो है इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम लाइक 15 to 20 ईयर्स, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो मान लीजिए इतने ज़्यादा साल लग रहे हैं, ठीक है, इतने ज़्यादा साल लग रहे हैं उसको मेच्योर होने में, तो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ अ कॉनिफर, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, चिलगोज़ा, ओके। सो एक इम्पॉर्टेंट होता है, उसका एक कॉनिफर का सीड जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, और वो जो सीड है हम लोग चाहते हैं कि वो जल्दी प्रोड्यूस हो जाए। वाई वेट फॉर दीज मैनी ईयर्स, देन इट विल नॉट बी कमर्शियली गुड फॉर अस। सो व्हाट वी डू इज़ वी अप्लाई द जिबरलिक एसिड। जब आप जिबरलिक एसिड अप्लाई करेंगे तो ये 15 to 20 के बजाय ये टाइम आपका कम होकर 7 to 10 ईयर्स, समथिंग लाइक दैट, इट विल कम डाउन। सो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि जुवेनाइल फेज जो है उसको हेस्टन यानी कि फास्ट कर दिया, फटाफट से जो आपका प्लांट है वो मेच्योरिटी की तरफ पहुंच जाएगा, ताकि आराम से वो सीड प्रोड्यूस कर दे, और जब वो सीड प्रोड्यूस कर देगा तो आपके लिए वो कमर्शियली यूज़फुल रहेगा। नाउ नेक्स्ट द रोल ऑफ जिबरलिन इज it increases internode growth in sugar cane and hence the yield up to 20 tons per hectare। तो जो शुगर केन होता है, शुगर केन के अंदर इंटरनोड जो होता है, ठीक है, दिस इंटरनोड इट इज़ द पार्ट विच कंटेन्स द शुगर। तो अगर इसकी लेंथ हम बढ़ा देते हैं तो हमको शुगर कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा मिलेगा, हमारी यील्ड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। तो इसलिए भी जिबरलिन जो है हम लोग शुगर केन पे अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमारी यील्ड या प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाए। और इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इट कैन इंक्रीज टू 20 टन्स पर हेक्टेयर बाय द एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन। नॉर्मली जितना भी प्रोडक्शन होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज नोटिस किया गया है। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ जिबरलिन्स इज इट प्रमोट्स बोल्टिंग इन प्लांट्स विद रोजेट हैबिट, एग्जाम्पल बीट, कैबेज एट्सेट्रा। तो जो प्लांट्स में रोजेट हैबिट होता है, रोजेट हैबिट मतलब क्या है, ऐसे प्लांट जिसके अंदर इस तरह से पहले तो क्या होता है, एक स्टॉक होगा और उसके ऊपर आपको दिखेगा इकट्ठे यहाँ पे बहुत सारे देयर विल बी लीव्स विच आर कलेक्टिंग लाइक दिस, जैसा कि कैबेज में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो बीट है या कोई और रूट्स भी होती हैं, इवन इट कैन बी लाइक द रेडिश, तो वहाँ सब में क्या होता है जो है ये आपका जिबरलिक एसिड का एप्लीकेशन, इट प्रमोट्स बोल्टिंग। नाउ व्हाट इज़ बोल्टिंग,
सो बोल्टिंग इज इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग होने से जस्ट पहले जो इंटरनोड की इलोंगेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बोल्टिंग। तो अगर इंटरनोड की इलोंगेशन का टाइम कम कर दिया जाए, ठीक है, जैसे कि ये है इंटरनोड, ओके, तो इंटरनोड है, जैसे कि इंटरनोड को आप क्या करना चाहते हो, अब आपको मालूम है कि अगर ये इलोंगेट होगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, तब जाकर के क्या होगी, बाद में देयर विल बी फ्लावरिंग, इसके ऊपर इस तरह से फ्लावरिंग दिखाई देगी, ओके। सो व्हाट इट डज इज दिस हार्मोन इफ़ यू अप्लाई, तो नॉर्मली जितना भी टाइम लग रहा है इंटरनोड को इलोंगेट होने में और उसके बाद फिर फ्लावरिंग होने में, वो टाइम रिड्यूस हो जाएगा, इंटरनोड जल्दी लंबा हो जाएगा, और क्योंकि वो जल्दी लंबा हो जाएगा तो फ्लावरिंग भी जल्दी हो जाएगी। सो कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि बीट और कैबेज, स्पेशली द प्लांट्स दैट हैव रोजेट हैबिट, उनके अंदर ये हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमें जल्दी से जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो हमको फ्लावर्स चाहिए, वो मिल जाए। So that was about the gibberellins. Now next hormone that we are going to study is cytokinins. Now cytokinins, first thing is we discuss the discovery. How were cytokinins discovered? So Skoog and co-workers discovered cytokinins while working on a tissue culture in tobacco plant. जब ये लोग इसके ऊपर वर्क कर रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो क्या वर्क कर रहे थे, इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने लिए थे टोबैको के, जैसे कि ये टोबैको प्लांट है मान लीजिए, तो इसके अंदर से कुछ सेल्स लिए थे, ठीक है, जो इसकी स्टेम होती है टोबैको की स्टेम के अंदर से इन्होंने पिथ सेल्स लिए थे, ओके, स्टेम में से पिथ सेल्स क्या होते हैं, दे आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर, उन सेल्स को इन्होंने आइसोलेट किया और उसके बाद दे ट्राई टू ग्रो इट इन अ टिश्यू कल्चर, ठीक है, टिश्यू कल्चर के अंदर मतलब न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके एक न्यूट्रिएंट मीडियम में दे ट्राई टू ग्रो इट। सो व्हाट हैपेंड इज, जब ये ग्रो करने चले तो इन्होंने क्या देखा कि अगर हम इसके अंदर, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने आइसोलेट कर लिया, ठीक है, आइसोलेट करने के बाद आपने क्या किया, इसको इस तरह से एक कल्चर प्लेट पे डाला, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं और ये कुछ पिथ सेल्स जो आपने टोबैको की स्टेम में से पिथ वाले एरिया में से निकाले हैं, ठीक है, दीज आर पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब क्या कर रहे हो आप इसको, यू आर ग्रोइंग इट ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। सो व्हाट दे ऑब्जर्व दीज साइंटिस्ट, द स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स, व्हाट दे ऑब्जर्व इज दैट कि जब इसके अंदर ऑक्सीजन डाल दिया जाए और ऑक्सीजन के साथ साथ ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल दिया जाए या फिर कोकोनट मिल्क का एक्सट्रैक्ट डाल दिया जाए, ठीक है, आइदर ऑफ दीज टू, ऑक्सीजन हैज़ टू बी देयर as well as that is along with oxygen you also need either the yeast extract or you need the coconut water, इन दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए, either yeast extract और coconut water। तो उन्होंने देखा कि अगर हम लोग पिथ सेल्स के कल्चर के अंदर ऑक्सीजन के साथ या तो ईस्ट एक्सट्रैक्ट या तो कोकोनट वाटर डाल देते हैं तो वैसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, इसके अंदर कैलस का प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि ये सेल्स जो हैं ये डिवाइड करके एक ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि ऐसे कैलस बना देते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज कैलस, ठीक है। तो कैलस का फॉर्मेशन होता ही कब है, जब आप ईस्ट एक्सट्रैक्ट या कोकोनट वाटर डालें अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन सिर्फ अकेला डाल देते हैं तो ये काम नहीं होता, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ देखा कि कोई एक चीज़ है जो इस कोकोनट वाटर या फिर ईस्ट एक्सट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस चीज़ का इनको पता नहीं था कि ये क्या है, बट क्योंकि ये सेल प्रमोट कर रहा था, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा था, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया इन्होंने, साइटोकाइनेंस, ओके, दे नेम्ड इट एज साइटोकाइनेंस। नाउ लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, देयर वाज दिस साइंटिस्ट कॉल्ड एज मिलर, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट अ साइटोकाइनेन। उनको मतलब पता चल गया, ठीक है, स्कूक को पता चल गया कि देयर इज समथिंग इन दिस, ओके, दैट इज कॉजिंग इट टू डिवाइड, विच इज हेल्पिंग द कैलस टू फॉर्म, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है। तो मिलर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू आइसोलेट अ साइटोकाइनिन, एंड वेयर इट ही आइसोलेटेड इट फ्रॉम, ही आइसोलेटेड इट फ्रॉम द स्पर्म ऑफ अ हेरिंग, ठीक है। हेरिंग क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ अ फिश, और उस फिश के अंदर के उसका जो स्पर्म था, उस स्पर्म का जो था सॉल्यूशन बना के रखा उन्होंने, और उन्होंने देखा कि जहाँ पर उस सॉल्यूशन को रखा था, ठीक है, व्हाट हैपेंड इज देयर द सेल डिवीजन वाज प्रोमोटेड, वहाँ पर सेल डिवीजन फास्ट हो गया था।
सो उन्होंने क्या नाम दिया, फिर इसको आइसोलेट किया और इस केमिकल का नाम उन्होंने क्या रखा, काइनेटिन. ओके, सो दिस वॉज सिमिलर इन एक्टिविटी विद द स्कूग्स एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर भी सेल डिवीजन प्रमोट हुई थी. तो बाद में, लेकिन अब क्योंकि ये दिस वॉज नॉट द प्लांट सोर्स, दिस वॉज द एनिमल सोर्स, तो बाद में पता किया गया जो आपका कोकोनट वाटर था, ठीक है, कोकोनट वाटर और साथ ही में जो मेज़ के कर्नल्स, मेज़ यानी मक्की, ओके, तो मक्की के जो कर्नल्स हैं यानी मेज़ के जो सीड्स आप कह सकते हैं, उसमें से और कोकोनट वाटर में से बाद में चल के क्या किया था, साइटोकाइनिन्स को आइसोलेट किया गया था. तो सो इफ समबडी आस्क यू फ्रॉम वेयर was the first cytokinin isolated, so first cytokinin, it was isolated from an animal source, its name was kinetin and it was obtained from the sperm of a herring. और जो अगर आप प्लांट की बात करो तो प्लांट्स में जो फर्स्ट आइसोलेटेड था, दैट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेज कर्नल्स, यानी मेज की सीड में से वो आइसोलेट किया गया था. और क्योंकि मेज का साइंटिफिक नेम जिया मेज होता है, ठीक है, जिया MAYS, जिया मेज, दैट इज़ वाई इस वाले का क्या नाम रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया जियाटिन. ओके, काइनेटिन, हियर इट इज जियाटिन. एंड द सेम वॉज ऑब्जर्व इन कोकोनट वाटर ऑल्सो, कोकोनट वाटर में भी सेम चीज़ पाई गई. तो मतलब क्या है कि आइसोलेट इसको पहले किया गया, इसको पहले पढ़ा गया, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन थी जिया मेस वाली और ये कोकोनट वाटर वाली, ये ऑब्जर्वेशन स्कूग ने पहले ही कर दी थी. तो फाइनली ये एस्टैब्लिश किया गया कि जो स्कूग का एक्सपेरिमेंट था उसके अंदर व्हाट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द इंक्रीज्ड रेट ऑफ सेल डिवीजन और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कैलस, दैट वाज द जियाटिन और यू कैन से अ साइटोकाइनिन सिंपली. सो अब साइटोकाइनिन्स जो हैं, साइटोकाइनिन्स का अब हम पढ़ लेते हैं, डिस्कवरी पढ़ लिया है हमने. तो नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रीकर्सर. ठीक है, व्हाट वाज द प्रीकर्सर ऑफ जिबरलिन? Yes, so the precursor of gibberellin, it was a terpene, okay, terpenoid था. Now here the precursor in case of this cytokinin, it is a aminopurine. So what is the chemical nature? जितने भी purines होते हैं वो क्या होते हैं? They are basic in nature. So what you will say that this is the only plant growth hormone that you are studying in this class, that is basic in nature, rest all will be acidic. Okay, auxins are acidic in nature, indole acetic acid, indole butyric acid, so you can guess from there. Then gibberellins, they are also acidic in nature because gibberellic acids, they are a group of gibberellic acids. Now comes this cytokinins because they are derivatives of aminopurine, so they are basic in nature. Okay, after this you will study about abscisic acid, that is also an acid. And then you will study about ethylene. Ethylene is a gas. So what you are trying to understand here, that this is a basic in nature. Why? Because it is a aminopurine derivative. Now what is the site of synthesis? Where are the cytokinins produced or where they are released? So they are synthesized in the root, bud, internodes, any site where active cell division is occurring. You can isolate the cytokinins from those sites. Now what are the examples? Examples, that means what are the various kinds of cytokinins that are there. So if somebody asks you what are the various types of gibberellins that are there, so you have gibberellic acid 1, gibberellic acid 2, 3, 4 like that. In case of auxins, it was indole acetic acid, indole butyric acid, naphthalene acetic acid and all that. So here you have kinetin, zeatin, and then this synthetic one, that is benzyl aminopurine. This is the one that is used in tissue cultures. ओके, सो अगर आपको आर्टिफिशियली डालना है तो यू विल यूज़ दिस वन. सो दैट इज़ अबाउट दिस. नाउ कम टू द रोल्स. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द साइटोकाइनिन? सो साइटोकाइनिन्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स. न्यू लीव्स, दे विल प्रमोट द फॉर्मेशन by the help of cell division. They will promote cell division, ultimately they will promote the formation of new leaves. It also promotes chloroplast division. So chloroplast का नंबर भी लीव्स के अंदर जो है उसको ये इंक्रीज करती है. इट प्रमोट्स क्लोरोप्लास्ट डिवीजन. नेक्स्ट, इट ओवरकम्स एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस क्या है कि जो टिप होती है, शूट टिप, ठीक है, तो जब तक शूट टिप ग्रो करती रहेगी तब तक लेटरल वाली ग्रोथ रुकी रहेगी, लेटरल ब्रांचिंग वगैरह नहीं होगी. ठीक है, सो एपिकल डोमिनेंस होता है. ठीक है, जब तक एपेक्स प्रेजेंट है तब तक ये यही काम चलेगा. सो टू रिवर्स दिस, टू
आपने ऐसा देखा है कि ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ एपिकल ही ग्रोथ हो, प्लांट में ब्रांचिंग फिर भी होती है। अब हालांकि एपिकल डोमिनेंस का फिनोमेना है, फिर भी ब्रांचिंग हो रही है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस साइटोकाइनेस ओनली। साइटोकाइनेस क्या है? वो ऑक्सिन के अपोजिट एंटागोनिस्ट यानी लाइक एन एनिमी, दे विल एक्ट हियर एंड दे विल प्रोमोट द ब्रांचिंग। ओके, सो इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। अगर आप किसी प्लांट के अंदर एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना चाहते हैं विदाउट रिमूविंग द टिप, सो व्हाट यू विल सिंपली डू इज यू अप्लाई साइटोकाइनेंस ओवर इट। सो साइटोकाइनेंस क्या करेंगे? एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में हेल्प करेंगे। देन बिकॉज एपिकल डोमिनेंस को हेल्प करेंगे ओवरकम करने में, सो दे विल डेफिनेटली प्रोमोट लेटरल ब्रांचिंग, यानी साइड में से ब्रांचेस निकलें आपके प्लांट में, ये वाले काम को ये चीज़ें क्या करती हैं? दिस साइटोकाइनिन इट प्रोमोट्स। देन इट प्रोमोट्स एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर। ओके, सो आपने क्या पढ़ा था? आपको मैंने कल बताया था कि अगर टिश्यू कल्चर है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है? कैलस है, ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। ओके, तो ये कैलस है, सपोज करिए दिस इज द कैलस। आप कैलस में आप क्या करना चाहते हो? आप बनाना चाहते हो रूट, ठीक है, या आप रूट बनाना चाहते हो या आप शूट बनाना चाहते हो, या फिर आपको याद हो तो हमने एक रोज़ का एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि रोज़ प्लांट के अगर टिप पे स्टेम कटिंग के ऊपर यहाँ पर ऑक्सिन सप्लाई कर दी जाए, सो क्या हो रहा था? उसके अंदर रूटिंग हो रही थी बेटा, देयर वॉज रूटिंग दैट वॉज इंड्यूस्ड इन एडवेंटिशियस रूट्स वर प्रोड्यूस्ड। सो अगर कैलस है और कैलस के अंदर आप लोग ऑक्सिन अप्लाई करते हैं, इफ़ यू अप्लाई ऑक्सिन्स, सो व्हाट हैपेंस? एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रोड्यूस्ड। और अगर आप ऑक्सिन नहीं अप्लाई करते बल्कि इंस्टेड ऑफ ऑक्सिन यू अप्लाई दिस साइटोकाइनिन, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि जो कैलस है उसके अंदर किसका प्रोडक्शन हो जाता है? एडवेंटिशियस शूट का, ठीक है। सो टिश्यू कल्चर के अंदर एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन जो है वो प्रमोट करता है साइटोकाइनिन्स, ठीक है। एडवेंटिशियस शूट यानी एनी शूट दैट इज अराइजिंग फ्रॉम अदर देन प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के अलावा, अदर देन प्लूम्यूल जो भी कहीं से भी अगर अराइज कर रही है, सो दैट काइंड ऑफ स्टेम विल बी कॉल्ड एज अ एडवेंटिशियस शूट। ओके, नाउ एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई है, व्हाट इज दैट थिंग? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इफ इन टिश्यू कल्चर, अगर आप टिश्यू कल्चर के अंदर ऑक्सिन डालते हैं, मान लीजिए ये आपका कैलस था, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये कैलस है। अब क्या करेंगे? आपने ये जब ये कैलस जब ये डेवलप हो रहा था तो आपने ऑक्सिन भी डाला था और साथ में आपने साइटोकाइनिन भी डाला था, ठीक है। तो शुरू में जब कैलस ग्रो कर रहा था तब आपने ऑक्सिन साइटोकाइनिन दोनों चीज़ें डाली थी और दोनों इक्वल अमाउंट्स में डाली थी। सो वैसे सिचुएशन में क्या होगा? आपका कैलस सिंपल बन जाएगा, कोई भी अफेक्ट नहीं होगा उसके अंदर, कोई डिफ्रेंसिएशन कुछ नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप उसके अंदर आप दो सिचुएशन और आप कर सकते हैं कि मान लीजिए आप इंस्टेड ऑफ कीपिंग द रेशियो सेम, अब आप क्या कर दे हो? इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन बढ़ा दीजिए। सो इफ़ यू इंक्रीज द ऑक्सिन देन रूटिंग विल अकर, ओके, एंड इफ यू इंक्रीज द साइटोकाइनिन्स देन इन दैट केस शूट टिप फॉर्मेशन विल बी देयर। सो आप क्या कर सकते हैं इन टिश्यू कल्चर? इफ़ यू वॉट एवर यू वॉन्ट डिपेंडिंग ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डेवलप, you can undergo you can use the process and you can use the chemicals accordingly. तो अगर आपको रूटिंग करवानी है तो you will put more of auxins, if you want shoot to form you will put more of the cytokinins. Now next is it promotes cell division. तो सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन रूट टिप पे मेनली सेल डिवीजन हो रहा है, बाकी जगह पे तो क्या हो रहा है? सिर्फ सेल का बड़ा हो रहा है, ठीक है। जिबरलिन जो है वो क्या कर रहा है? सिर्फ सेल को एनलार्ज कर रहा है, सेल के साइज को बढ़ा रहा था। तो यहाँ पर क्या है? सेल डिवीजन कहाँ पे होता था? टिप्स पे हो रहा था। तो सेल डिवीजन वॉज अकरिंग एट द टिप्स, और सेल डिवीजन में रोल कौन प्ले कर रहा था? मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और उन पर एक्टिविटी किसकी होती थी? ऑक्सिन की। तो जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है तो उसमें देखिए पहले तो सेल इलोंगेट होता है, और इलोंगेट होने के बाद फिर क्या होती है? साइटोकाइनेसिस होती है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस होती है यानी कि एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू पार्ट्स। दिस इज हाउ इट हैपन्स। पहले सेल इलोंगेट होगा और इलोंगेट होने के बाद वो दो पार्ट्स में टूटेगा, ठीक है। तो जो ये इलोंगेशन का प्रोसेस है ये कौन करता है? ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन जो है सेल का एनलार्जमेंट करेगा, उसका इलोंगेशन करेगा ताकि वो बढ़ जाए, उसका साइज इंक्रीज करेगा, और जो फाइनल डिवीजन होना है
उस काम के लिए देयर यू हैव टू पुट फॉर साइटोकाइनेसिस यू नीड टू पुट द साइटोकाइनेंस. ओके, सो आप क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर सेल डिवीजन करना है, इफ़ यू वांट सेल डिवीजन टू बी कैरिड आउट, सो फॉर दैट पर्पज यू नीड बोथ द ऑक्सिन्स एज वेल एज द साइटोकाइनेंस. दो के दोनों ज़रूरी हैं. Now what is the next role, the seventh role, that is, so cytokinins promote nutrient mobilization leading to delayed senescence. What is nutrient mobilization? Mobilization means anything that is mobile, that is able to move from one place to another, that is mobile thing. So mobilization nutrients का mobilization मतलब कि nutrients को जिस पॉइंट पे वो सिंथेसाइज हो रहे हैं या जिस पॉइंट पर वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वहाँ से जिस पॉइंट पर उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ तक पहुँचाना. सो साइटोकाइनेंस क्या करते हैं, साइटोकाइनेंस जो ओल्ड पार्ट्स हैं, ओल्ड से उसको लेकर के न्यू पार्ट्स तक ले जाएंगे. ठीक है, या फिर जहाँ पर भी सोर्स है, सोर्स से वो लोग जिस भी पार्ट को चाहिए उस पार्ट तक लेकर चले जाएंगे न्यूट्रिएंट्स को. जब न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे तो जो भी प्लांट का पार्ट है दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो एंड इट विल नॉट get old or it will not die, so senescence is delayed. Okay, so cytokinins का एक और रोल क्या है, to delay senescence. So these were the roles of cytokinins. Now let us come to the next that we have ethylene. So ethylene क्या है, ethylene it is a gaseous plant growth regulator. ये gaseous in nature है. ठीक है, it is a gas. So क्या किया गया था, एक स्टार्टिंग में इसकी एक स्टोरी है कि जर्मनी के अंदर कुछ लैम्प्स लगाए गए थे. ठीक है, जर्मनी के अंदर स्ट्रीट पे कुछ लैम्प्स लगाए गए थे और उसके बाद क्या नोटिस किया गया था कि जो वहाँ पे प्लांट लगा हुआ था, ठीक है, जो प्लांट लगा हुआ था उसके पत्ते क्या हो रहे थे, देवर ड्राइंग आउट. ओके, सो उन्होंने पहले तो सोचा ये क्या होगा. बाद में उनको पता चला कि ओके देयर वाज दिस गैस कॉल्ड एज इथाइलिन दैट वाज रिलीज्ड नियर द लैम्प्स एंड दैट गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्टिंग और द फॉलिंग ऑफ द लीव्स. ओके, सो दैट इज वन थिंग. नाउ व्हेन डिड द एक्चुअल डिस्कवरी ऑफ इथाइलिन अकर? सो देयर वाज दिस साइंटिस्ट नोन एज H.H. Cousins. Okay, in the year 1910, what he did, ही वॉज स्टडिंग दीज राइपेंड ऑरेंजेस. राइपनिंग वो पढ़ रहे थे और उस टाइम उन्होंने देखा कि जो राइपेंड ऑरेंजेस हैं उनके पास में एक वॉलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होता है. वॉलेटाइल मतलब कि जो हवा में उड़ सकता है आराम से. ठीक है, अगर आप उसको हीट करो तो इट विल जस्ट कन्वर्ट इनटू द वेपर स्टेट एंड इट विल डिफ्यूज इनटू द एयर. सो इन्होंने क्या कहा कि जो राइपेंड ऑरेंजेस हैं यानी जो पके हुए संतरे होते हैं उनके अंदर से कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस निकलता है जिसकी वजह से जो स्टोर्ड अनराइपेंड बनानास हैं यानी कच्चे केले अगर आप उसको रखें उस राइपेंड बनानास के कांटेक्ट में तो राइपेंड ऑरेंजेस के कांटेक्ट में, तो उन राइपेंड ऑरेंजेस में से कुछ ऐसा निकलता है जो जाकर के उन अनराइपेंड बनानास को राइपेंड में चेंज कर देता है यानी उनकी राइपनिंग करवा देता है. तो बाद में क्या पता चला कि दिस वॉलेटाइल सब्सटेंस वाज एक्चुअली इथाइलिन, अ गैसियस plant growth regulator. So this is how the ethylene was discovered. Now precursor यानी कि ये किससे बनता है? So there is methionine. From methionine it is synthesized. And what is the site of synthesis? So any site where abscission is occurring. ठीक है, जहाँ पर भी abscission हो रहा है यानी कि प्लांट की वहाँ पे आपको दिखेगा लीफ की विल्टिंग हो रही है जहाँ पर, या जहाँ पे आपका फ्लावर कहीं पे टूट फूट के नीचे गिर रहा है. सो वेर एवर द सेनेसेंस इज अकरिंग, वेर एवर द ओल्ड एज इज अकरिंग, यू कैन से ऑल दो साइड्स यू विल ऑब्जर्व दिस. नाउ व्हाट आर द रोल्स और द फंक्शंस? सो द इथाइलिन इट प्रोमोट्स द एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सबका एब्सिशन करवाता है, उसको प्रमोट करता है. ठीक है, तो लीफ अब पुराना हो चुका है तो लीफ इट विल फॉल विद द हेल्प ऑफ दिस हार्मोन. देन फ्लावर है, फ्लावर अब उसको इट शुड फॉल ऑफ. ओके, द फ्रूट शुड टेक द प्लेस. सो अगेन द हेल्प विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस हार्मोन. सिमिलरली फ्रूट अभी भी राइपन हो गया है तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट भी ये करेगा और जब राइपन हो गया तो ऑटोमेटिकली उसको स्टॉक से डिटैच होकर नीचे फॉल ऑफ करने का जो प्रोसेस है उसमें भी यही हार्मोन रोल प्ले करेगा. नेक्स्ट फंक्शन इज इट प्रोमोट्स फ्रूट राइपनिंग. ओके,
सो फ्रूट की जो राइपनिंग है वो इथाइलिन से इंक्रीज होती है। तो अगर आपके पास इन द फैक्ट्री, इन नॉट इन द फैक्ट्रीज, इन द गोडाउन्स, व्हाट दे डू इज दे विल हैव द अनराइपन्ड फ्रूट्स, बिना पके हुए फ्रूट्स को वो गोडाउन्स में लेके आ जाएंगे। देन उसके बाद उस पर इथाइलिन गैस का एप्लीकेशन करेंगे। इथाइलिन गैस बेसिकली वो लोग नहीं अप्लाई करते हैं, उसकी जगह पर वो एक केमिकल डालते हैं, दैट इज इथोफेन। ठीक है, तो वो केमिकल डालकर ही बाद में वो केमिकल क्या करता है, धीरे धीरे इट विल रिलीज इथाइलिन गैस अल्टीमेटली। सो दैट इथाइलिन गैस विल प्रमोट द फ्रूट राइपनिंग, एंड ड्यू टू द राइपनिंग व्हाट विल हैपन, द फ्रूट विल बी अवेलेबल और रेडी फॉर द मार्केट। सो अब एक ये प्रोसेस का नाम भी आपके बुक में मेंशन है इन द एनसीईआरटी, दैट इज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक? तो जब भी आपने देखा हो कि अगर कहीं पे आपने केलों को या किसी चीज़ को पकने के लिए कोई फ्रूट्स को रखा है, सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाट इज दिस इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू? दिस इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज अकरिंग देयर। सो ड्यूरिंग राइपनिंग रेस्पिरेशन जो रेट होता है इट इंक्रीजेस, and this increase in the rate of respiration is what is known as respiratory climactic. So due to respiratory climactic, the ripening of fruit happens because of the excess heat that is produced, that is resulting in the production of ethylene gas, and that is what is leading to the process of ripening. Now next is it promotes flowering in pineapple. pineapple के अंदर flowering promote करता है ये। Next, promotes growth of rice plants underwater by leaf petiole elongation and lower internode elongation. तो क्या होता है, जैसे अंडर वाटर में जैसे राइस का प्लांट है, ठीक है, तो राइस का प्लांट है, इट सम ऑफ इट्स पार्ट विल बी बिलो द वाटर। तो ये जो पार्ट इसका बिलो द वाटर है, ये क्या करता है, इसका ये जो इंटरनोड है, ठीक है, द इंटरनोड दैट इज बिलो द वाटर, इस इंटरनोड की ये जो ग्रोथ है ये करवाएगा। जब ये इंटरनोड ग्रो होगा तो ऑब्वियसली इट विल कम आउट लाइक दिस, ठीक है, ये इंटरनोड बाहर आ जाएगा। तो आपका जो प्लांट है इसमें मान लीजिए यहाँ पर पिटियोल लगा हुआ, यहाँ पर उसका लीफ लगा हुआ था, तो अब लीफ क्या हो जाएगा, उसकी पोजीशन ऊपर हो जाएगी, तो इट विल नो लॉन्गर बी सबमर्ज्ड, और ये जो होगा इसकी वजह से क्या होगा, आपके प्लांट जो है वो आराम से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएगा। सिमिलरली इट ऑल्सो कॉजेज द इलोंगेशन ऑफ द पिटियोल। पिटियोल क्या होता है, दिस स्टॉक दैट इज होल्डिंग द लीफ, ओके, दिस इज कॉल्ड एज पिटियोल। तो पिटियोल जो है, पिटियोल की इलोंगेशन करवाता है ताकि आपका जो लीफ है, ठीक है, अभी राइस का लीफ ऐसा नहीं होता, राइस का लीफ कैसा होगा, इट विल बी मोनोकॉट लीव्स लाइक दिस, ओके। सो इसका जो पिटियोल है उसकी लेंथ वो बढ़ा देगा, तो जब लेंथ बढ़ जाएगी तो ये जो है आपका इट विल बी कमिंग आउट ऑफ द वाटर and it will be able to carry out photosynthesis easily. So it promotes the growth of rice plants underwater by leaf petiole elongation and by elongation of the lower internode. नीचे वाला जो internode है, only the lower internode, जो GA है वो किसका कर रहा है, it is causing all of the internodes to elongate. Now here it is causing only the lower internode, the lowermost internode it is elongating with the help of this, and it is helping the plant to stay out of water so that it can continue with the process of photosynthesis. Now next what it does is it promotes the growth of roots and root hairs, and this in turn helps in increasing the area for absorption of water. तो absorption surface minerals और water को absorb करने का जो एरिया है वो कैसे बढ़ाया जाएगा, अगर रूट्स या रूट हेयर्स को बढ़ा दिया जाए। सो ये कौन करता है, दिस विल बी परफॉर्म्ड बाय दिस पर्टिकुलर इथाइलिन ग्रोथ रेगुलेटर. नाउ नेक्स्ट इज इट प्रमोट सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग इन मैंगो. सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग का मतलब ये है कि फ्लावरिंग हो और फ्लावरिंग के थोड़े देर बाद ही, मतलब कि एकदम प्रॉपर ऑर्डर में विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट आफ्टर फ्लावरिंग देयर विल बी फ्रूटिंग, फ्रूट डेवलपमेंट. सो ये क्या करता है, ये सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग जो है मैंगो के अंदर उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड एंड बड डोरमेंसी इन पोटैटो ट्यूबर्स एंड इन पीनट सीड्स. व्हाट इज सीड डोरमेंसी? Seed dormancy is an inactive period. Okay, seed dormancy means seed will be inactive and it will not germinate despite the presence of favorable conditions. So ये वाला जो हार्मोन है ये क्या करता है, सीड और बड डोरमेंसी को
क्या करता है, इट विल ब्रेक इट सो दैट दे कैन गो एंड जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट. नाउ आई वॉज टेलिंग यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ अबाउट दिस केमिकल इथिफॉन. इथिफॉन क्या है, इथिफॉन जो है एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, इट इज़ एन एक्वस सॉल्यूशन. और इसको क्या, ये इट इज़ ईजिली एब्जॉर्ब्ड, इट इज़ ईजिली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट. एक एक्वस सॉल्यूशन है, यानी पानी में घोल के आप ये सॉल्यूशन बना के रखेंगे इथिफॉन का, और फिर इसको आप स्प्रे कर देंगे आपके प्लांट्स के ऊपर. फिर प्लांट के अंदर ये बेटा ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड इट विल बी रेडिली ट्रांसपोर्टेड इनटू द रीजन्स वेयर द इथाइलिन हैज़ टू एक्ट नाउ. तो धीरे धीरे जब ये प्लांट के अंदर जाएगा वहाँ जाकर ये इथाइलिन अल्टीमेटली ये यही हार्मोन जो है इथाइलिन इसी को रिलीज़ करता है, और इथाइलिन के जो फंक्शंस हैं वही फंक्शंस वहाँ पर फिर आपको एक्टिवेट होते दिखाई देंगे. सो व्हाट पर्पसेस वी आर यूजिंग इथेफॉन फॉर. सो अगर इथेफॉन टोमेटोज और एप्पल्स में लगा दिया जाए, ठीक है, उनके ऊपर स्प्रे कर दिया जाए, सो व्हाट विल हैपन, इट विल हेस्टन द राइपनिंग, यानी कि जो उनका पकने का स्पीड है उसको ये क्या कर देगा, बढ़ा देगा. नेक्स्ट इज थिनिंग ऑफ फ्रूट वॉल इन चेरी, एप्रिकॉट एंड कॉटन. ठीक है, तो चेरी का जो फ्रूट है या फिर एप्रिकॉट है या कॉटन है, तो हर एक के अंदर क्या होता है, जो वॉल है वो हमारे उतने काम की नहीं है, ठीक है, जो फ्रूट की वॉल है. सो ये क्या करता है, फ्रूट की वॉल को थिनिंग जो है उसको प्रमोट करता है, तो वो थिन ही रहेगी और अंदर जो है आपका जो प्लांट का जो एक्चुअल इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो फ्रूट आपको जिसकी नेसेसरी है, जो आपके लिए कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है, यूज़फुल है, उसको ये प्रोड्यूस होने देगा. और जो फ्रूट वॉल है जिसके अंदर वेस्टेज हो रहा था, जो इसको ज़रूरत नहीं है, सॉरी हमको ज़रूरत नहीं है, उसको ये क्या करता है, थिन करता है. नेक्स्ट इज प्रमोट्स फीमेल फ्लावर्स प्रोडक्शन इन क्यूकम्बर. सो जो क्यूकम्बर की प्लांट्स होते हैं उसके अंदर ये फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन जो है उसको प्रमोट करता है, यानी उसके रेट को इंक्रीज़ करता है. और जितने ज़्यादा फीमेल फ्लावर जो प्लांट्स होंगे उतने ही ज़्यादा यील्ड बढ़ जाएगी. ओके, सो इट इज़ लाइक दिस. सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ इथाइलिन. नाउ द लास्ट हार्मोन दैट वी आर सपोज टू स्टडी इज दिस द एब्सिसिक एसिड. सो एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी कब हुई थी? इन द मिड 1960s, 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kinds of inhibitors. तो 3 अलग अलग रिसर्चेज हुई और उन सब में अलग अलग तरीके के तीन केमिकल्स बेसिकली उन लोगों ने आइसोलेट किए, अलग अलग मतलब सेपरेटली दे डिड दिस रिसर्च. और वो क्या क्या थे, एक था इनहिबिटर बी, एक था एब्सिशन सेकेंड और एक था डॉर्मिन. और बाद में क्या पता चला कि ये तीन के तीनों देवर एक्चुअली केमिकली द सेम थिंग, और फिर इसका नाम रखा गया एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड एज द नेम सजेस्ट इट इज़ कॉजिंग द एब्सिशन. सो ये कैसा है, इट इज़ अ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर काइंड ऑफ अ हार्मोन. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस? सो इट इज़ ओवरऑल इनहिबिटर ऑफ द प्लांट ग्रोथ. प्लांट ग्रोथ को ये ओवरऑल क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी प्लांट ग्रोथ को ये उसके रेट को डिक्रीज करेगा अल्टीमेटली, जिससे कि प्लांट जो है उसके कुछ पार्ट्स दे विल ब्रेक डाउन एंड दे विल डाई एंड विथर ऑफ. नेक्स्ट वर्क दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन. हाउ वाई इट इज़ नोन एज स्ट्रेस हार्मोन? क्योंकि एक और फंक्शन करता है कि मान लीजिए वाटर स्ट्रेस का कंडीशन है, पानी कम हो गया है प्लांट के अंदर. सो नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल प्रमोट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. ये स्टोमेटा का क्लोजर जो है उसको प्रमोट करेगा. इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर लॉस अब नहीं होगा. तो वाटर लॉस नहीं होगा, सो द प्लांट विल बी प्रोटेक्टेड, and that is why this is called as stress hormone. Now another function that it does is it promotes seed dormancy. ये क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है. जस्ट लाइक इथाइलिन वाज आल्सो प्रमोटिंग इथाइलिन वाज ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी एंड दिस जिबरलिक एसिड इट वाज आल्सो ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी. क्यों, कैसे कर रहा था, ये माल्टिंग करवा देता है जैसे कि बार्ले में. तो ये क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है जिबरलिक एसिड शुगर के अंदर, और शुगर जब बन जाएगा तो वो आसानी से आगे चल के जो है रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा. सो ये क्या करता है, दिस पर्टिकुलर एब्सिसिक एसिड इट प्रोमोट्स सीड डॉर्मेंसी, यानी जो जिबरलिक एसिड का फंक्शन है उसके ऑपोजिट ये फंक्शन करता है. सो इट प्रोमोट्स सीड डॉर्मेंसी, यानी ये सीड ताकि जर्मिनेट होकर नया सीड ना बना पाए, ये वो वाला काम करता है. सो विच इज़ एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिक एसिड. सो दीज आर सम ऑफ द रोल्स. Now
in the book there is given this topic that some hormones, like we have studied about various hormones so far, and we have noted that some of the functions, कुछ hormones कोई function कर रहे हैं और कोई hormone जो है वो भी सेम फंक्शन कर रहे हैं. मतलब कोई फंक्शन है जो 2-3 हार्मोन में आपको दिखेगा कि ये वाला हार्मोन भी ये काम कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है और ये वाला भी कर रहा है. और कुछ फंक्शन आपको ऐसे दिखेंगे जिसमें एक हार्मोन उस काम को प्रमोट कर रहा है, अगला हार्मोन उस काम को क्या कर रहा है, प्रमोट नहीं करने की बजाय वो उसको क्या कह सकते हैं कि उसको इनहिबिट कर रहा है. ठीक है. सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. आप यू कैन से नॉट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स. The hormones can be, like if we use 2 hormones in combination, so either they can be agonistic यानी एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर सकते हैं, या फिर they can be they can be antagonistic, that is they are working against each other, or they can be agonist or that is synergistic यानी कि वो साथ में काम कर सके. तो agonist का मतलब क्या हुआ कि अब साथ में काम कर रहे हैं, एक ही काम को कर रहे हैं. जैसे एक का काम है सीड को डॉर्मेंसी करना, तो अगला भी क्या करेगा, सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट ही करेगा. ठीक है. एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट मीन्स दे आर वर्किंग अगेंस्ट और इन अपोजिट मैनर विद रिस्पेक्ट टू अ पर्पज. जैसे कोई पर्पज ले लीजिए आप, सीड डॉर्मेंसी, तो अगर एक सीड डॉर्मेंसी प्रमोट कर रहा है, दूसरा क्या करता है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, तो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट काम कर रहे हैं. तो इसको हम बोलेंगे कि दीज 2 हार्मोन्स दे आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर इन एक्टिविटी. सो सम एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस हियर. सो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन अगर हम लें, सो ऑक्सिन क्या करता है और साइटोकाइनिन, इनका एक एंटागोनिस्टिक रोल है एपिकल डोमिनेंस के टर्म्स में अगर हम बात करें. तो ऑक्सिन क्या करता है हमको पता है, ऑक्सिन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, और साइटोकाइनिन क्या करता है, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, इट इनहिबिट्स एपिकल डोमिनेंस या इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस. यही फंक्शन हमने पढ़ा था कि ये एपिकल डोमिनेंस को नहीं होने देता. इनफैक्ट ये क्या करता है, ये लेटरल ब्रांचिंग को प्रमोट करता है. सो ये इन दोनों का एंटागोनिस्टिक रोल है. अब ऑक्सिन साइटोकाइनिन के 2 रोल जो हैं वो कॉमन भी हैं. ठीक है. दोनों एक रोल को प्रमोट भी करते हैं, दैट इज सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर. तो आपने देखा था कि जब हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों देते हैं, दोनों की ज़रूरत है अगर हमको प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन करना है. ऑक्सिन जो है वो इलोंगेट करवा रहा था सेल का साइज को, और जो आपका साइटोकाइनिन था वो एंड में जो साइटोकाइनेसिस होनी थी उसको हेल्प कर रहा था. यानी कि दोनों में से कुछ भी मिसिंग होगा तो काम अच्छे से नहीं होगा. सो व्हाट यू कैन से इज दे आर सिनर्जिस्टिक टू ईच अदर, दे आर वर्किंग टुगेदर in order to cause the cell division. So here they are working with each other, here they are working opposite to each other. Now next is ऑक्सीनिथाइलिन. अगर हम ऑक्सीनिथाइलिन को पेयर को लें तो ये कहाँ पे एगोनिस्ट हैं, दे आर बोथ प्रोमोटिंग एब्सिशन. दोनों के द्वारा एब्सिशन कॉज करते हैं यंग लीव्स का. ठीक है. तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों का एगोनिस्टिक एक्टिविटी है, एगोनिस्टिक टाइप का इंटरेक्शन है. सिमिलरली अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एब्सिसिक एसिड और जिबरलिक एसिड. सो एब्सिसिक एसिड और जिबरलिक एसिड की अगर हम बात करें सीड डॉर्मेंसी के टर्म्स में, तो जिबरलिक एसिड क्या करता था और एब्सिसिक एसिड क्या करता था. एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता था कि डॉर्मेंसी कंटिन्यू रहे, और जिबरलिक एसिड क्या करता था, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा था. सो देयर यू कैन सी दैट दे आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैव डन. सो स्टार्टिंग में हमने क्या डिस्कस किया, अभी डिस्कस्ड अबाउट जिबरलिन्स. हमने देखा कि जिबरलिन्स की डिस्कवरी कैसे होती है, कहाँ कैसे हुई थी, हाउ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द जिबरलिन्स, what is the precursor molecule that is responsible for synthesis of the gibberellins, what are the various examples of gibberellins, then we came across the various roles of gibberellins. gibberellins के बाद हमने डिस्कस किया about the साइटोकाइनेंस. साइटोकाइनेंस की डिस्कवरी कैसे हुई, साइटोकाइनेंस का नेचर क्या होता है, साइटोकाइनेंस का प्रीकर्सर क्या होता है, साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होती है, रोल्स क्या होते हैं. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इथाइलिन, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द abscisic acid, and finally we discussed how the hormones they can be acting together synergistically performing a job, or how they can also be acting in non coordination, or you can say in opposite to each other, in non cooperation. So that also we have studied. So that is all about the plant growth regulators. So with this we end the class today. Thank you and do study well.